تمہارے رب کا یہ حتمی فیصلہ ہے کہ تم صرف اور صرف اپنے اللہ کی عبادت کرو، وبالوالدین احسانا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف۔ اگر تمہارے ماں باپ میں سے دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کی منزل کو پہنچ جائے تو دیکھو فلا تقل لہما اف، اپنے ماں باپ سے اف تک نہ کہنا، ولا تنہرہما۔ جب اسلام اف کو برداشت نہیں کرتا ہے، آگے بڑھ کے کہہ رہا ہے خیال کرنا، اف بھی نہ کہنا، ولا تنہرہما، اور نہیں اپنے ماں باپ کو جھڑکنا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب اپنے ماں باپ سے گفتگو کرنا، اپنے ماں باپ سے باتیں کرنا تو اپنے کریم ہونے کا پتہ بتانا، کریمانہ انداز میں اپنے ماں باپ سے گفتگو کرنا، اور گفتگو کرنے میں بھی یہ خیال رکھنا کہ تمہارے یہاں اکڑ نہ ہو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے شانوں کو جھکا دینا، اور پھر جتنی بھی نیکیاں کر لینا اپنے ماں باپ کے ساتھ، تمہارے ذہن میں یہ تصور اور خیال نہ آنے پائے کہ تم نے اپنے ماں باپ کا حق ادا کیا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، مجھ خدا کی بارگاہ میں یہ کہتے رہنا، اے اللہ جیسے بچپنے میں میرے ماں باپ نے میری تربیت کی ہے اور میری تربیت میں میرے ماں باپ نے زحمتیں برداشت کی ہیں، پروردگارا میں اپنے ماں باپ کی زحمتوں کا اجر ادا کر ہی نہیں سکتا ہوں، لہذا تو اپنے لامحدود خزانے رحمت سے میرے ماں باپ پر رحمتوں کی بارش نازل کرو۔ میں تو اپنے ماں باپ کے لیے کچھ کر بھی نہیں سکتا، اور خاص طور سے جب بات ماں باپ کی آتی ہے تو خصوصیت کے ساتھ قرآن ماں کا تذکرہ کرتا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو یہ سکھا کے بھیجا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ اب جب یہاں تو قرآن کہہ لیتا تو کہتا ہے حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، لیکن انسان کے ماں باپ میں سے اس کی ماں کا خصوصی کردار ہے۔ وہ کیا کردار ہے؟ کہا کہ حملتہ امہ کرہا، اس کی ماں نے اسے اپنے شکم میں رکھا ہے، لیکن اس نے جب شکم میں رکھا ہے تو اس کی ماں کو تکلیف ہوتی تھی، پر
جو زحمتوں کو خوشی خوشی برداشت کرتی تھی وہ تمہاری ماں. آپ غور تو کریں ماں کا کردار کیا ہوتا ہے. جو تمام مشکلات کو خوشی خوشی برداشت کرے اسے ماں کہا جاتا ہے. حملت ہو امہ کرہا، ایک بوجھ 2 کلو کا، 2.5 کلو کا، 3 کلو کا ایک بوجھ اپنے شکم میں رکھے، یہ صرف ماں کا کردار ہے. یہ صرف، اور اس زحمتوں کو خوشی خوشی برداشت کرے یہ صرف ایک ماں کر سکتی ہے. قرآن نے کہا حملت ہو امہ کرہا ووضعتہ کرہا، پیٹ میں شکم میں رکھے رہے، تکلیف رہی تمہاری ماں کو، اور جب تمہیں جنا تمہاری ماں نے تبھی تمہاری ماں کو تکلیف ہوئی، مگر دونوں وقت کی تکلیف کو خوشی خوشی جس نے برداشت کیا اسے ماں کہا جاتا ہے. اسی لیے تو حدیث نے عظمت مادر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا. آپ کو پتا ہے ماں کی اہمیت کے لیے حدیث کہتی ہے کہ تمہیں اپنی ماں کی پیشانی کا بوسہ دینا چاہیے، تمہیں اپنی ماں کے ہاتھ کا بوسہ دینا چاہیے. من قبل بین عینی امہ، کہا اگر کسی نے اپنی ماں کی پیشانی کو چوم لیا تو حدیث کہتی ہے کان لہ صفرم من النار، اگر تم نے محبت سے اپنی ماں کی پیشانی کو چوما ہے نا تو یہی ایک بوسہ تمہارے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ بن جائے گا. یہ نجات بنے گا یہی. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے اپنی ماں کے ساتھ نیکی کی ہے نا، تم نے اپنی ماں کو بوسہ کیا ہے محبت سے. یہ زندگی کا اصول ہے. ہمارے مراجع اور ہمارے علماء میں سے شیخ اعظم انصاری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہوا ہے کہ زندگی میں ہمیشہ اپنی ماں کا ہاتھ چوم کے سوئے ہیں. پہلے اپنی ماں کا ہاتھ چومتے تھے پھر جا کے سوتے تھے، گھر سے نکلتے نہیں تھے جب تک کہ اپنی ماں کو بتا نہ لیتے تھے. اور جب شیخ اعظم انصاری کی مادر گرامی دنیا سے گزری ہیں تو بہت رو رہے تھے شیخ اعظم انصاری. پوچھنے والے نے کہا کہ آپ مرجع وقت ہیں، آپ آیت اللہ ہیں، آپ مجتہد ہیں، آپ روئیں گے آپ کی شان کے خلاف ہے تو جانے قربان ہو جائیں. شیخ اعظم انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تمہیں پتا کیا ماں کہتے کسے ہیں؟ ماں اسے کہتے ہیں جو کچھ نہ کرے صرف زندہ رہ جائے تو بلائیں ٹل جایا کرتی. کچھ بھی نہ کرے ایسے وجود کو ماں کہا جاتا ہے. خمینی ماں ہی پیدا کرتی ہے، آغائے سیستانی ایک ماں ہی پیدا کرتی ہے، آغائے خوری ایک ماں ہی پیدا کرتی ہے. تاریخ میں ماں کا بڑا عظیم کردار ہے. آپ دیکھیں تو ظاہراً ایک خیبر کی جنگ ہے، مگر جب خیبر کی جنگ میں آنے والے آئے تو دونوں نے اپنی اپنی ماں کا تذکرہ کیا. مرحب نے بھی آ کر یہی کہا تھا سمتنی امی مرحبا، میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا، اور میرے مولا نے بھی یہی کہا تھا سمتنی امی حیدرا، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. جنگ کے میدان میں ماں کی بات کیا ہے بھئی؟ جنگ کے میدان میں ماں کا تذکرہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ ماں کا تذکرہ نہیں، ماں کا تذکرہ بتا کر کے بتانا چاہتے. خیبر کی جنگ کوئی جنگ نہ تھی، صرف اور صرف 2 ماں کے کردار کی جنگ تھی. دونوں نے اپنی اپنی ماں کا تذکرہ کر کے یہ بتانا چاہا دنیا پہچانے کس کی ماں کسے مرحب بناتی ہے اور کس کی ماں کسے حیدر بناتی ہے. چوتھے امام نے رسالت الحقوق میں ماں کے حوالے سے ایک بات کہی ہے. آپ انصاف سے بتائیے ہم اپنے ماں باپ کو کیا کھلا سکتے ہیں، ہم اپنے ماں باپ کو کہاں رکھ سکتے ہیں، مگر میری ماں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے. چوتھے امام نے کہا زندگی بھر تمہیں اس احسان کو، اس نیکی کو بھولنا نہیں چاہیے کہ تمہاری ماں نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے. میں اپنی ماں کو کہاں رکھ سکتا ہوں، میں اپنی ماں کو کیا کھلا سکتا ہوں، میں اپنی ماں کو کیا دے سکتا ہوں، مگر امام نے فرمایا تم سوچو تو کبھی تمہاری
तुम्हारी माँ ने तुम्हें कहाँ रखा है, तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्या खिलाया है, तुम्हारी माँ ने तुम्हारी हिफाजत कैसे की है। इसीलिए मेरे माम ने कहा फहब उम्मे का अंता अलमा अन्ना हमलत का हैसुला यहमिलु अहदुन अहदा। तुम्हारी माँ का तुम्हारे ऊपर ये हक है कि तुम सोचते रहोगे, तुम्हें ये जानना चाहिए कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें वहाँ रखा है जहाँ दुनिया का कोई भी इंसान किसी को नहीं रख सकता है। आदिल साहब से तो बताएं, एक इंसान की माँ ने उसे कहाँ रखा है। काश जिस जगह पे तुम्हारी माँ ने तुम्हें रखा है ना, दुनिया का कोई भी इंसान किसी को नहीं रख सकता। तो खिलाया क्या है तुम्हारी माँ ने। कुरान कहता है कि तुम जब अपनी माँ के शिकम में थे ना, तो हर दिन तुम्हारी माँ सही से सही होती गई। कभी इसको कैल्शियम की मुश्किल हुई, कभी उसे कमजोरी हुई। वहनन अला वहनी की लफ्ज़ है। हम शिकम में थे, शिकम से बाहर आए तो अपनी माँ का शीर इस्तेमाल करते रहे। हम तो परवान चढ़ते रहे, मगर हमारी वजह से हमारी माँ कमजोर होती रही, हमारी वजह से हमारी माँ ज़ईफ़ होती रही। कहा पहचानो तो तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्या खिलाया। वो असमत का मिन समरते क़ल्बिहा मा ला युतिमु अहदुन अहदा। उन्हें जिगर खिलाया है तुम्हारी माँ ने। दुनिया का कोई भी इंसान किसी को जो खिला न खिला सके, वो तुम्हारी माँ ने तुम्हें खिलाया है। और ये भी याद रखना, तुम्हारी माँ ने तुम्हारी हिफाजत कैसे की है, कभी ख्याल ना आना। इसीलिए मैं इस बात को रोक के सही से सज्जादिया की 24वीं दुआ से इस बात को अर्थ करना चाहूँगा। मेरे इमाम ने बताया है कि अपने माँ बाप के साथ कैसे रहा जाता है। दुआ की है चौथे इमाम ने, अल्लाहुम्मा खफ्फिज़ लहुमा सौती। हे मेरे अल्लाह, मेरे लबो लहजे को मेरे माँ बाप के लिए नर्म बना दे। ये एक इंसान की पहचान है। जो इंसान अपने माँ बाप से प्यार से ना बोल सके, जो इंसान अपने माँ बाप का वफादार ना हो, वो फिर किसी का नहीं हो सकता। चौथे इमाम ने कहा अल्लाहुम्मा खफ्फिज़ लहुमा सौती। हे मेरे अल्लाह, मेरी ज़बान में नरमी पैदा कर दे। मैं बोलूँ अपने माँ बाप के लिए तो ऐसे बोलूँ जैसे मेरे कलाम से फूल झड़ रहे हों। वो असीब लहुमा कलामी, मेरे कलाम को मुअत्तर बना दे मेरे माँ बाप के लिए। वो अलिम लहुमा अरीकती, मेरे वजूद को मेरे माँ बाप के लिए झुका दे। वो असीब अलैहिमा, हे मेरे अल्लाह क़ल्बी, हे मेरे अल्लाह मेरे क़ल्ब को मेरे माँ बाप के लिए नर्म बना दे, मेरे माँ बाप के लिए नर्म बना दे। वसय्यिरनी बिहिमा रफ़ीक़ा, ए अल्लाह, चौथे इमाम ने कहा ए अल्लाह मुझे मेरे माँ बाप का रफीक बना दे। वो अलैहिमा शफीक़ा, और मेरे अंदर वो कुव्वत दे दे, मैं अपने माँ बाप के साथ शफ़क़त करने लगूँ, अपने माँ बाप के साथ मोहब्बत करने लगूँ। और फिर अजीब बात गई, ए अल्लाह, मैंने तेरे बारगाह में अपनी माँ बाप की मग़फ़िरत की दुआ की है ना, तो हे मेरे अल्लाह, जो मैंने अपने माँ बाप की मग़फ़िरत की दुआ की है, उसके सदक़े में मेरे माँ बाप को माफ़ फरमा दे। और जो मेरे माँ बाप ने मेरी तरबियत में ज़हमतें उठाई है ना, उस ज़हमतों के सदक़े में मेरे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा दे। एक सलावत पढ़िएगा। अब कहा कि मेरे माँ बाप ने जो ज़हमतें बर्दाश्त की है ना, उन ज़हमतों के सदक़े में अल्लाह मेरे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा दे। आपको पता है, दोनों जहां की सआदत का राज सिर्फ एक ही चीज है, और वो है एहतराम वालिदैन। ये वो अजीम सरमाया है कि जिसे नसीब हो गया तो वो फिर उसकी दुनिया भी समझ जाती है और आखिरत भी समझ जाती। मेरे इमाम ने ये जुमला इरशाद फरमाया, इतनी बात जानते रहना, तुम्हारी माँ ने तुम्हें वहाँ रखा है, दुनिया का कोई भी इंसान किसी को नहीं रख सकता। वो खिलाया है जो कोई भी नहीं खिला सकता। वक़त का बिसमइहा व यदिहा व रिजलिहा व शअरिहा व बशरिहा, मुकम्मल वजूद से तुम्हारी माँ ने तुम्हारी केयर की है। काना पत्नुहा लका, तुम्हारी माँ का शिकम तुम्हारी खिलकत का ज़र्फ
बना रहा। वो कान हिजरुहा लका हिबाअन, और तुम्हारी माँ का आगोश, तुम्हारी माँ की आगोश तुम्हारे लिए गहवारा बनी रही, और तुम्हारी माँ का वजूद तुम्हारी खिलकत का जरिया बना रहा। फतशकुरहा अला क़द्र ज़ालिक, ए इंसान अपनी माँ का शुक्रिया अदा कर, अपनी माँ की कदरदानी कर। तो फिर माँ की कदरदानी कैसे होगी? वला तक़्तदिरु अला ज़ालिका इल्ला बिअज़्निल्लाह व तौफ़ीक़िही, हर एक को नसीब नहीं है ये अजीम मर्तबा कि वो अपने माँ बाप का नेक बन जाए, कोई अपनी माँ की कदरदानी कर ले। कहा नहीं, माँ बाप का नेक तो वही होता है, उसी को ये तौफीक मिलती है जिसके यहाँ अल्लाह की मदद शामिल हाल हो। वला तक़दिरु अला ज़ालिका इल्ला बिअज़्निल्लाह व तौफ़ीक़िही, इसके लिए तो खुदा की तौफीक का सवाल करना होगा, तब जाके इंसान अपने माँ बाप का नेक बनेगा। एक सलावत अगर शामिल हाल हो जाएगा फिर इंसान तो किस अजीम सरमाए का नाम है। आपको पता है हमारी आंखों पे पर्दे पड़े, हमारे कानों पे पर्दे पड़े हैं। अगर इंसान अपने माँ बाप का नेक हो जाता है तो इंसानों से पर्दे हट जाते। फिर जब जाके इमाम मासूम को सलाम करता है ना, तो जब इमाम मासूम जवाब देंगे तो ये कान सुनने लगेंगे। करबला का एक जवान था, करबला के अतराफ में रहता था, लेकिन एक आलिम दीन ने ख्वाब में देखा कि वो इमाम हुसैन की ज़ियारत को आया, और जब सैयदुल शुहदा की ज़ियारत को गया और उसने सलाम किया इमाम हुसैन को, तो अब इमाम आली मकाम ने जब उसके सलाम का जवाब दिया तो उसने अपने कानों से सुना, आका के ज़रिए से निकले हुए जुमले उसके कानों में टकराने लगे। आलिम दीन को बहुत ताज्जुब हुआ, ये कितना अजीमुल मर्तबा जवाब है। आखिर जब ये सैयदुल शुहदा को सलाम करता है और इमाम आली मकाम इसके सलाम का जवाब देते हैं तो इसके कान इमाम के जवाब को सुनते हैं। आलिम दीन निकले, इस जवान का पता लगाना चाहिए। पहुंच गए ढूंढते तो उस जवान को पाने के बाद कहा कि मैंने तुम्हारे बारे में ख्वाब देखा है। कहा अच्छा, मेरे बारे में ख्वाब देखा है? कहा हाँ। कहा ख्वाब क्या है? कहा मैंने आज में ख्वाब में देखा है कि तुम जब इमाम हुसैन की ज़ियारत को जाते हो और जब सैयदुल शुहदा को सलाम करते हो तो इमाम हुसैन जब तुम्हारे सलाम का जवाब देते हैं तो तुम अपने कानों से उन आवाज़ को सुनते हो। तो आलिम दीन ने जब ये बात कही तो उसे जर्रा बराबर भी ताज्जुब न हुआ, उसने कोई तवज्जो न की। आलिम दीन ने कहा मैंने इतना अजीम ख्वाब देखा और तुम्हें कोई तवज्जो न की तुमने। तो वो जवान कहता है कि आप ख्वाब की बात करते हैं, आप ख्वाब की बात करते हैं, मैं बेदारी के आलम में जब सैयदुल शुहदा की बारगाह में जाके अपने आका इमाम हुसैन को सलाम करता हूँ और मेरे आका जब मेरे सलाम का जवाब देते हैं तो मेरे कान सुनते हैं। आलिम दीन चौंक गए, अच्छा तुम्हें ये मकाम फिर कहाँ से मिला? कहा मैं बताता हूँ मुझे ये मकाम कहाँ से मिला। कहा मैं एक बेटा था, मेरे माँ बाप बूढ़े थे, जब मेरी शादी करना चाहा तो मेरे माँ बाप ने मुझे बुलाया, मेरी शादी कर दी एक लड़की से, और जब मैं शादी करके अपनी अहलिया को लेकर आया तो मैंने अपनी बीवी से कहा और अपने माँ बाप को सामने बैठा के कहा बड़ी सहमतों से मेरे माँ बाप ने पाला है, बड़ी मशक्कतों से मेरे माँ बाप ने पाला है, देखो मैं अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकता, मैं चाहता हूँ घर के काम तुम करो, बाहर के काम मैं करूँगा। बीवी राजी हो गई। फिर अपने माँ बाप से पूछा, माँ बाप ये बताइए क्या आप लोग भी राजी हैं? आप लोग भी राजी हैं? तो माँ बाप ने कहा एक शर्त है, हमारी एक शर्त है, जब भी तुम करबला जाना सैयदुल शुहदा की ज़ियारत को तो जिस वक्त भी जाओगे, जुमेरात को जाओ, 15 शाबान को जाओ, 13 रजब को जाओ, 27 रजब को जाओ, जब भी जाना तो किसी एक को तुम्हें ले जाना होगा। तो वो कहता है कि अच्छी बात है, मेरे सवारी पे कोई एक आ सकता है तो एक जुमेरात बाबा को ले जाऊंगा और एक जुमेरात को अपनी वालिदा को लेके जाऊंगा। ये बात हो गई, लेके जाता रहा। मगर एक ऐसी मुनासिबत आई कि जब किसी एक की नौबत थी, या बाप पर की नौबत थी या उसकी माँ की, अब जब एक को ले जाना चाहा तो वो जवान कहता है कि मैंने देखा कि
अगर मैं अपनी माँ को ले जा रहा हूँ तो बाप भी चाह रहे थे, बाप को भी ले जाना लगा तो मेरी माँ भी जाने को कह रही थी, और एक ही बैठ सकता था तो एक को अपने दोस्त पे बैठाया, एक को सवारी पे बैठाया, और बैठाने के बाद करबलाए मोहल्ला के करीब लेके गया, जहाँ सवारी रोकी जाती है वहाँ रोका, फिर एक को अपने दोस्त पे बैठा के करबलाए मोहल्ला पहुँचा, रोज़े अबा अब्दुल्लाह हुसैन पे पहुँचा, बारिश हो रही थी, मेरे पैरों में कीचड़ लगी। उसके बाद मैंने बाहर ही अपनी माँ को उतारा और कहा ये सही है अबा अब्दुल्लाह हुसैन है, आप चले जाइए। फिर अपने बाप को ले आया और कहा चूंकि मेरा पैर गंदा हो चुका था इसलिए मैं हरमे अबा अब्दुल्लाह हुसैन में न जा सका, लिहाजा मैंने उस दिन बाहर ही से सैयद शुहदा को सलाम किया, अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह हुसैन। कहा चूंकि मेरे पैर गंदे थे और मैं न जा सका अंदर, मैंने बाहर से सैयद शुहदा को सलाम किया। कहा उस दिन जब मैंने सलाम किया, अब जो मेरे आका ने मेरे सलाम का जवाब दिया तो उस दिन से मेरे कान मेरे आका के सलाम को जवाब को सुनते हैं। उस दिन के बाद से जब भी मैं अपने आका को सलाम करता हूँ और मेरे आका जब सलाम का जवाब देते हैं तो मेरे कान सुनते हैं। इसे कहते हैं अज़मत वालिदैन। जो इंसान के कानों से पर्दे हटा देते हैं ना, वो माँ बाप के साथ हुस्न सलूक है, अच्छा बर्ताव है। इसीलिए दीवाने मोहतरम मेरे चौथे इमाम ने बारहा ये दुआ की है अल्लाह से कि अल्लाह मेरे माँ बाप को मुकर्रम बना दे, मेरे माँ बाप को करामतें अता फरमा दे, और ए मेरे अल्लाह मरने के बाद अगर मेरी पहले मग़फ़िरत करती ना तो मुझे अपने माँ बाप का शफी बना दे, और अगर मेरे माँ बाप की पहले मग़फ़िरत की तो मेरे माँ बाप को मेरा शफी बना दे, ताकि मेरे माँ बाप मेरी शफाअत कर सके। इसका मतलब ये होता है कि औलाद भी माँ बाप की शफाअत करेंगे और माँ बाप भी औलाद की शफाअत करेंगे। सैयद सज्जाद से मैं पूछना चाहूँगा, आका आप शफाअत की बात क्यों कर रहे थे? तो आवाज़ किया, मैं नहीं चाहता कि मेरे माँ बाप में शब्द भी मुझसे जुदा हो जाए। ए अल्लाह, जो तेरी करामत का घर है, जो तेरी मग़फ़िरत का घर है, जहाँ तू मेरे माँ बाप को रखेगा, मैं चाहता हूँ वहीं के ऊपर उसी दारे करामत में, उसी दारे मग़फ़िरत में मेरे माँ बाप के साथ मुझे भी रख दे। बस अज़ीज़ान मोहतरम, जो सैयद सज्जाद ये बर्दाश्त न करते हो कि माँ बाप से जुदा हो जाए। क़यामत का समा था, एक 22 साला जवान था, जिंदगी भर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ऐसे न देखा था जिस्म पे लिबास न हो या जिसमें अधर हो, मगर जिसमें अधर पे सर न हो। मुहर्रम की 11 तारीख थी, सैयद सज्जाद को ऊँट के शिकम से बांध दिया गया था और ज़ैनब ने अपने आप को ऊँट की पुष्ट से जमीन पे गिरा दिया था, अपने भाई के लाशे को अपने हाथों पे लिए हुए कह रही थी, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना हाज़ल क़लील मिनल क़ुरबान, और ये मर्सिया पढ़ रही थी, अंदाकी अंदाकी अंदाकी। हुसैन ज़ैनब बुला रही है, मेरे माँ जाए ज़ैनब तुम्हें पुकार रही है, हुसैन कुछ तो बोलो। अरे ज़ैनब हुसैन से बहन कर रही थी, सैयद सज्जाद की हालत गैर हो गई, लाश बरादर को छोड़ दिया, दौड़ी दौड़ी सैयद सज्जाद के पास आई, बेटा अरे तुम्हारी हालत खैर हो रही है। सैयद सज्जाद ने कहा, फूफी अम्मा, हाथों में पाँव में बेड़िया, गले में तो के खारदार, मेरे बाबा का लाशा मदीने करबला पे देखो कफन पड़ा हुआ। फूफी अम्मा, मेरे बाबा को गुस्ल न दिया गया, मेरे बाबा को कफन न दिया गया, ज़ैनब ने सहारा लिया। सैयद सज्जाद घबराओ नहीं, मेरे हुसैन की कुर्बानी जाएगा न जाएगी, यही मेरे भैया का मज़ार बनेगा, यही मेरे हुसैन